A very good morning, dear students. So, we now begin with the session on object oriented modeling and design. And in today's lecture, we will be discussing about the UML diagram and that is the use case diagram. In our previous lecture, we have understood the class diagram of UML. Today, we will be starting with the use case diagram. Okay, so what is this use case diagram? First, I will explain you all, and then we will see the graphical notations used for use case diagram. And at the end, we will try to compile all those diagrams, notations to a diagram with the help of the notations learned. Okay, so use case diagram is basically used for describing a set of user scenarios. Okay, so it is mainly used for capturing user requirements, work like a contract between end user and software developer. So basically, when we say about the use case diagram, it is used for describing a set of scenarios. Now, what is the meaning of scenario? Scenario means one instance, one scene. Like in a day, we go to 24 hours. Like this use case diagram is actually with respect to the day to day things that we do. Now, when we say we want to diagrammatically represent, then how we are expected to capture this? So actually, we first need to understand what is the scenario कि हो क्या रहा है या फिर होने वाला क्या है इसके बाद, जैसे कि मिनी एक्टिविटीज. ओके, सो मिनी एक्टिविटीज मीन्स इसके बाद क्या होगा, you have to find it out. And for that, you need to understand or rather describe a set of user scenarios. Means user क्या करेगा. ओके, किसी और के सिनेरियोस से हम जो सिस्टम है और जो यूजर है उसमें कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे. Okay, so use case diagram is basically used for describing a set of user scenarios. Okay, and mainly it is used for capturing the user requirements. So before I move ahead, I would just like to tell my voice is cutting a bit because I'm having a bad tooth. So please understand that. Now, scenario means I'll give you an example now. Like हमें एक जगह पे जाना है. Maybe we want to go for a weekend, for a trip, and for a vacation. Then what do? We then first start with planning. Then we start with booking. Then we book it. Then we move towards the destination. We spend some time over there. Then we have fun over there. And again we back. So what is this? ये सारे users है जो कि वो scene में involved है. Okay? और इस सब में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थे कि डायल करो नंबर्स, वेकेशन का स्पॉट ढूंढो, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं देखो, कितने लोग आने वाले हैं, कहाँ पे जाने वाले हैं, बजट क्या है, पैसे कैसे भरेंगे. सो इतनी सारी चीजें होती है. सो बेसिकली इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एंड यूजर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. तो वी विल सी नाउ when we are going to draw or understand the use case diagrams, one after the other, okay, we have to in our mind first write down the scenarios. अभी सिनेरियोस कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने एक के बाद एक बोला. ओके, तो सिनेरियोस वन आफ्टर द अदर. फर्स्ट ये हुआ, उसके बाद एंटर यूज, जैसे कि लॉग इन एक एक्टिविटी है, उसके लिए पहले हमको क्लिक करना पड़ता है पेज. उसके बाद एंटर यूजर नेम डिटेल्स, फिर क्लिक द बटन साइन इन, और उसके बाद हम जाते हैं अगले पेज पे. तो ये क्या था, ये एक यूज केस था जहां पे एक रिक्वायरमेंट थे, सिस्टम था, यूजर था और उसके साथ एक इंटरेक्शन था. ओके, सो अभी
we will see the core components of use case. तो आई होप यूज केस डायग्राम का मतलब समझ कि क्या यूज क्या हो रहा है, ओके और हम उसको डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, उसको फ्रीज कैसे कर रहे हैं, उसमें सिनेरियोज कैसे है। तो सबसे पहले तो है कि जो कोर कंपोनेंट्स है यूज केस डायग्राम के, वी विल स्टडी दैट। See, today and tomorrow we will do use case diagram, and I want everyone, all the 40 students who are there, to be very attentively listening to it. So obviously, जो फर्स्ट कंपोनेंट, जैसे कि हमने क्लास डायग्राम में देखा कि एक रेक्टेंगल होता है, तीन कंपोनेंट्स में, तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, राइट? उसका उसके लिए पब्लिक विजिबिलिटी है, प्राइवेट है और एसोसिएशन रिलेशन। तो यहाँ पे भी वैसा ही सब कुछ है, बट इसके ग्राफिकल नोटेशंस कुछ अलग तरीके से हैं। तो फर्स्ट ग्राफिकल नोटेशन जिसको बोलते हैं वो है एक्टर। अभी एक्टर जैसे कि द यूजर, तो जो सिस्टम तुम डिजाइन कर रहे हो, वट एवर सिस्टम यू आर डिजाइनिंग, हु आर द एक्टर्स इन इट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। और एक्टर्स का रोल क्या है? सो बेसिकली अ एक्टर, a role that a user plays with respect to system, including human users, also other systems like inanimate physical objects, robot, an external system that needs some information from current system. Okay? उसके बाद है use case, जिसको बोलते हैं set of scenarios that describing an interaction between a user and a system, including alternatives. ओके और उसके बाद है सिस्टम बाउंड्री। ऑब्वियसली जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, अब हम फॉर एग्जांपल आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रतीक। प्रतीक है, प्रतीक दुधाल? प्रतीक दुधाल, राज जकापुरे, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। प्रतीक, राज, हाँ अनम्यूट करो, चैट पे मत मैसेज भेजो, प्लीज अनम्यूट नाउ। प्रतीक एंड राज काइंडली अनम्यूट, आई जस्ट वांट टू आंसर। लाइक अभी मैं जैसे सिस्टम बोल रही हूँ लॉग इन करने का, और एक जैसे कि हमने प्लानिंग किया, तो मुझे बताओ अभी रेलवे रिजर्वेशन के लिए, यस प्रतीक, रेलवे रिजर्वेशन के लिए यू यूज ऑनलाइन एप्लीकेशन, राइट? यस और नो? I am once again requesting that kindly unmute. Please do not answer me on the chat. Is Raj there? Raj? Yes, ma'am. Huh. So please answer the question then. For making a railway reservation, okay, what is the application that you use? Ma'am, actually we use the IRCTC website, ma'am, official railway Correct. website to book the ticket. Yeah. So any other answer? Actually, ma'am, they also have their mobile app also. Okay, fine. So means my simple task was making a railway reservation. Now, what you said is very correct. You everyone, please listen now. I'm explaining that core component. Now, Raj said the concept. I just said that the user wants to make a railway reservation. Okay, so railway reservation and book a railway. Now, I have nothing said about it. And what is the possible option? Okay, neither Raj asked me where I want to book the railway, or neither he asked me where I want to go or where I come from. And the most important thing, where I belong to India. Okay, so अब अगर मैं बोलती हूँ उसके बाद I want to book a railway or a metro train, I want to book a train to Switzerland and Frankfurt. Okay, so can we be done by IRCTC? Raj? No, ma'am. Exactly. Why it cannot be done? Ma'am, because it's only for the Indian railways and the train for India, and Switzerland is, of course, it's outside of India, so that's why we cannot book the ticket. But if I same go for the air reservation, airplane ticket then, Ma'am, and if I actually, go to make my trip, yeah, ma'am, actually, Make My Trip books the worldwide reservations, and actually, we can book the tickets for Switzerland because Make My Trip provides the flight for actually every place where we want to go.
Right. That is what I'm trying to point out here. So, system boundary, the boundary of the system defining is very essential while designing the system and also at the same time developing the system. And that is represented by a rectangle. Can you see here? The third core component of use case diagram is called as a system boundary rectangle diagram representing the boundary between actors and the system. अब जबकि ये बाउंड्री है तब पता चलेगा इंडियन रेलवे बुकिंग ऐसा बोलोगे, नहीं तो ट्रेन बुकिंग, तो ट्रेन बुकिंग तो जनरलाइज हो गया राइट। तो तुम्हारा जो सिस्टम है आईआरसीटी का ऐप है वो कहीं पर भी कर सकता है इसका मतलब नहीं, बट तुम यहाँ पे बोलना चाहिए कि इंडियन ट्रेन बुकिंग और स्लैश रेलवे टिकट्स बुकिंग। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम बाउंड्री। ओके, are you understanding, Raj? So what you Yes, explained is ma'am. very nice. So if now, whereas the make my trip, उसका बाउंड्री ही डिफाइंड द स्कोप, दैट इज जिसको बोलते हैं ना स्कोप, ये वर्ड तुम लोगों ने यूज किया, यूज एज इन तुम लोग अभी जैसे थर्ड ईयर में आए हो तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है। तो थर्ड ईयर में ये लाइक स्कोप, क्या स्कोप है, तो इसका स्कोप इंडिया तक मर्यादित है और मेक माई ट्रिप इज हैविंग अ वर्ल्ड वाइड स्कोप। Therefore, whenever you are designing your mini project also, what is going to be the scope of your project? That is what is the most important thing. Okay. Now, a meeting related to the mini project also will be dealt. I forgot to mention in the morning. So, is this clear about the system boundary? So, three main components first. So, actor who are involved in the system, what are the scenarios, what is the interaction. So the actor is represented by this is called as the stick diagram, actor stick diagram. Okay, a circle, a stick, and a human figure stick, and the use case is shown by a ellipse. Okay, so if it is simple ellipse that shows a use case, at times it may be filled also, it may not be filled also. The third is the system boundary, which is shown by a rectangle. Okay, now moving ahead, obviously now there is an interaction, there is going to be a communication, and the communication within the system is always described with the help of relationship. So here also we have the same relationships that we have studied in the class diagram. So what are those? So association is the fundamental relationship, that is the communication between an actor and a use case. It is represented by a solid line. Okay, so a communication between actor and a use case is shown with the help of a solid line. Okay, so that is the basic core relationship. Then the next relationship, as we have seen, generalization between one general use case and a special use case used for defining special alternatives. We have seen this in the class diagram also. Okay, so how is this represented? So generalization like a special case of the initial use case. Okay, so it is represented by a line with a triangular arrowhead towards the parent use case. So while I am explaining, I want the students to just note down this graphical notations. I just give a minute for the same. I hope you have drawn it by now. So after that, so the most important relationship, like simple, fundamental, association तो होना ही चाहिए. You cannot have this actors use case and no association. नहीं हो सकता वैसे. So association is basically communication between an actor and a use case. It is represented by a solid line, and generalization is between a use case and a special case. Okay. So moving ahead, include. Now, what is this include? See, a dotted line labeled by double opening and closing triangular braces, beginning at the base use case and ending with arrows pointing to the include use case.
The include relationship occurs when a chunk of behavior is similar across more than one use case. Use include instead of copying the description of that behavior. As the name says कि include, something is included. जैसे कि कुछ बिहेवियर है, इंटरैक्शंस है, वो कॉमन है और वो सिमिलर है, तो बड़ा जो यूज केस है, ओके, और जो यूज केस कुछ इंक्लूड कर रहा है, इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द यूज केस विच इज इंक्लूडिंग इट. सो रजिस्ट्रेशन अगर एक यूज केस है, तो उसके अंदर लॉग इन विल बी द include use case, because you cannot log in. So I ask this question: can you log in without sign up or registration? Yes, Abhishek. Yes, Madhuri. No, ma'am. हाँ, so can means अभी तुम देखो, registration also is one scenario and sign up is one scenario, और login भी एक scenario है. तो तुम login कर सकते हो क्या? अगर गेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो कैन यू लॉग इन टू द गेट पोर्टल विदाउट रजिस्ट्रेशन? माधुरी? यस माधुरी? No, ma'am, we cannot. What is the reason? Ma'am, because to log in, the person must be registered so that he can log in with the credentials which he had used while registration. Obviously, because after registration only, you will get a mail which says that this is your user ID and this is your password. Means, can you say that login is included in registration? Yes, ma'am. So I hope I'm making it very simple for you to understand. I'm clearing the basics by giving very real time example. तो आगे जाके आपको ये ध्यान में आए कि ये यूज केस के अंदर ये इंक्लूडेड है. ओके, तो देन हाउ विल यू शो दिस इंक्लूड? अभी और एक बात, नाउ इट डिपेंड्स कि पोर्टल बिहेव कैसे कर रहा है. ओके, साइन इन एंड अगर साइन अप एज यूजर हो या फिर लॉग इन एज यूजर हो, तो इंक्लूड नहीं आएगा वहां पे. तो बहुत सारे ऑप्शंस है. मींस एक छोटा सा आजकल तो अभी देखो, लॉग इन विथ गूगल, फेसबुक और ट्विटर ऐसे ऑप्शंस है, राइट, आपके पास. तो ये सब इंक्लूडेड है क्योंकि ऑलरेडी यू आर रजिस्टर्ड विद दीज थ्री, इजंट इट माधुरी? Yes, ma'am. Most of us are. हाँ, एग्जैक्टली. सो तो ये सारे ऑप्शंस है. मींस एक लॉगिन का सिंपल पेज डिजाइन करने के लिए ये सारे ऑप्शंस है, और डिजाइनर ये सारे ऑप्शंस दे सकता है जो कि प्रोग्रामर को अपने प्रोग्रामिंग के फॉर्म में इंक्लूड करने. ओके, तो उसके बाद आई होप दिस इंक्लूड इज क्लियर. नाउ मूविंग अहेड, extend. Okay, so extend, obviously again a dotted line labeled as extend with an arrow towards the base. The extending use case may add behavior to the base use case. The base class declares extension point. Okay, तो extension क्या है? जो भी current use case है उसका extension. Are you getting it? Means अगर आपने लॉगिन किया है, तो वो लॉगिन ऐसे भी हो सकता है कि वो लॉगिन आप एक्सटेंड कर रहे हो. मींस जैसे कि सेम गूगल है, तो गूगल को आप एक्सटेंड, मींस गूगल इज इन बिटवीन, यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद फेसबुक, सो इट कैन बी इधर इंक्लूडेड, एट द सेम टाइम इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि टू वे एरो जा सकता है कि तुम ऑलरेडी फेसबुक का, मीन्स अगर आप फेसबुक पे हो करंटली और आप फेसबुक से कुछ चीजों पे ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि परचेस या फिर अमेजोन पे ऑर्डर, तो एक्सटेंड होता है. उसी को लॉगिन को आप जाके, मीन्स स्पेसिफिकली द सिस्टम इज नॉट डिमांडिंग कि तुम अलग सा रजिस्ट्रेशन करो, बट कुछ कुछ चीजों में ऐसा है कि सिस्टम इज डिमांडिंग यू डू अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन. कुछ चीजों में ऐसा है कि वो नहीं कर रहे डिमांड. So I hope you are getting it. So include, extend, you have to really think while you are designing it also, or you are programming it also. Okay, because it can be either way. एक तो include हो सकता है या फिर extend हो सकता है. I hope you have got this. Okay, so we have done with the core relationships of the use case diagram. Now we'll see a
compilation of all the graphical notations, okay, for a library system. Now library system, अभी हमने जो जो रिलेशंस है वो तो देख लिए. अभी सबसे बेसिक डायग्राम दिखाएं यहाँ पे, ओके. तो बेसिक डायग्राम में यहाँ पे ना इंक्लूड है, बस पहले तो करेक्ट चीज क्या है कि तुम आइडेंटिफाई करो तुम्हारा यूज केस क्या है, ओके. उसके बाद तुम्हारे एक्टर्स और तुम्हारे सिस्टम का बाउंड्री. तो बाउंड्री असना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी सिस्टम है तो ई लाइब्रेरी सिस्टम है क्या, या फिर स्टैंड अलोन लाइब्रेरी सिस्टम है, कौन सा लाइब्रेरी सिस्टम है, ये जानना बहुत जरूरी है, ओके. तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्टर्स कौन कौन होंगे. अभी यहाँ पे क्लाइंट बोला है, अभी ये लाइब्रेरी सिस्टम है, ओके. तो यहाँ पे क्लाइंट है, तो यहाँ पे क्लाइंट भी हो सकता है, ओके. यहाँ पे स्टूडेंट भी हो सकता है. पर तुम्हारा सिस्टम किस चीज के लिए, तुम्हारा सिस्टम बुक परचेस ऑर्डर के लिए है क्या, या किसी और के लिए है. समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स यूजर है और कौन एक्टर है इसमें, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ओके. तो यहाँ पे सिस्टम का बाउंड्री है, ओके. एक्टर है यहाँ पे क्लाइंट, और अदर साइड एम्प्लॉई है जो कि सिस्टम का हो. उसके बाद सुपरवाइजर है, ओके. सुपरवाइजर जो बुक्स देता है, एम्प्लॉई है, ओके. अभी यहाँ पे ये इधर से ये डायग्राम देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है, ओके. हमको डायग्राम पढ़ते आना चाहिए. तुम अगर बोलोगे कि लाइब्रेरी सिस्टम है, बट लाइब्रेरी सिस्टम देखो कैसे है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया. यहाँ पे क्लाइंट बोला, ये स्टूडेंट लाइब्रेरी सिस्टम नहीं है, ये जनरल पब्लिक का लाइब्रेरी सिस्टम है, पता नहीं कौन सा है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है जब तक हम आगे उसको पढ़ ना ले. तो क्या ये फर्स्ट हैंड डायग्राम से समझ में क्या आ रहा है कि एक लाइब्रेरी सिस्टम है. A generalized description of how a system will be used provides an overview of intended functionality. तो हमको ये समझ में आ रहा है कि तीन एक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें. एक है एम्प्लॉय, सुपरवाइजर और क्लाइंट. क्लाइंट है जो बोरो कर रहा है. उसके बाद फाइन, अगर वो एम्प्लॉय ऑर्डर ले रहा है उसका, सुपरवाइजर को वो ऑर्डर जा रही है, ओके, जो वो बोरो कर रहा है. उसके बाद एम्प्लॉय को सारा इंफॉर्मेशन जैसे कि बोरो के बारे में, ऑर्डर टाइटल के बारे में, और अगर उस पे कुछ फाइन है, फाइन रिमिटेंस, ओके, उसके बारे में, ये सारे चीजों का पता है. जबकि सुपरवाइजर को सिर्फ ऑर्डर टाइटल और फाइन रिमिटेंस इनके बारे में पता है, और अगर जो भी फाइन रिमिटेंस है वो क्लाइंट तक जा रहा है. इससे ये पता चल रहा है कि ये एक सिस्टम है जो नॉन स्टूडेंट्स के लिए है, ओके. और यहाँ पे बुक, ऐसे बुक भी नहीं बोला है, यहाँ पे बोरो कर रहे हैं. ऑब्वियसली लाइब्रेरी है तो बुक ही होगा, या फिर ई जर्नल्स कुछ भी हो सकते हैं. बोरो करने के बाद वो टाइटल वो सुपरवाइजर को दे रहा है, सुपरवाइजर उसको इश्यू कर रहा है, और उसके बाद अगर वो लेट हो जाता है तो उस पे फाइन भी लग सकता है, और वो फाइन तुरंत ही क्लाइंट को पता चलता है, ओके. तो ये वेरी रफ डायग्राम था, ओके. इतना तो बेसिकली आना ही चाहिए. अब मैं आपको और एक डायग्राम, सो मैं बहुत डायग्राम्स हम अब यूज केस के बारे में डिसाइड देखेंगे एक करके. तो अभी ये जो है ये एक क्लिनिक का है, ओके. ये थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है. अभी क्लिनिक एज इन ऑब्वियसली पेशेंट्स होंगे, डॉक्टर होगा, और अभी डॉक्टर मींस अभी ये क्लिनिक का बुकिंग का है, ओके. सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि पूना, बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हमारी शोलापुर की तरह नहीं होता है कि हम जाए डॉक्टर के पास और वेट करते बैठे. वहां पे ऑनलाइन बुकिंग होता है. तो उसके लिए यहाँ पे डॉक्टर से डायरेक्टली बात होगी क्या हमारी? नहीं. फोन करके हम डॉक्टर को पूछेंगे क्या कि कब आओ? शोलापुर में ऐसा होता है कि फोन करो, डॉक्टर को पूछो, पहचान निकालो, फिर नंबर लाओ, फिर कोई तो वहां से देखो, बोलो चलो हमको ले लो. वैसे नहीं, ये सिस्टमैटिक सिस्टम है. तो देखो यहाँ पे क्या है, सिस्टम बाउंड्री डिफाइंड है, सिस्टम का नेम लिखा है, ओके. अब पेशेंट है जिसको अपॉइंटमेंट करना है, ओके. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक शेड्यूलर है. अभी ये शेड्यूलर जो है वो ह्यूमन शेड्यूलर भी हो सकता है, या फिर
सॉफ्टवेयर शेड्यूलर ऑटोमेटिक, जैसे कि होता है ना डेट्स अवेलेबल, टाइम अवेलेबल, तुमको बस अपॉइंटमेंट देखना है और अल्गोरिदम रन होता है, अगर स्लॉट फ्री है तो तुमको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पे शेड्यूलर है और यहाँ पे डॉक्टर भी है। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली शेड्यूल करने के बाद डॉक्टर का रोल आएगा, उसके बाद क्लरिकल, अभी डॉक्टर तुमको पैसे नहीं देता, तुमको रिसीट फाड़ के नहीं देता है, राइट? तो क्लरिकल स्टाफ होगा, उसको क्लर्क बोल सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट बोल सकते हैं, जो भी रोल नेम आपको स्पेसिफिक लगे। तो वी विल जस्ट सी, आई वांट एवरीवन टू गो टू द व्हाट यू कैन से डायग्राम वेरी प्रॉपरली, और लिख के लो और अपने कॉपी में बना के लो। तो फर्स्ट है कि मेक अपॉइंटमेंट। अभी मेक अपॉइंटमेंट ये यूज केस है। मेक अपॉइंटमेंट करने के लिए सिनेरियो क्या है? पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स होने चाहिए, फिर शी मस्ट हैव फाउंड आउट अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड डॉक्टर्स, उसके बाद वो नंबर्स उसके पास होने चाहिए, तो फिर वो अपॉइंटमेंट लेगी और वो शेड्यूलर से बात करेगी। ओके, तो उसके बाद अगर अपॉइंटमेंट लिया, अभी ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट है या पहले का पेशेंट है, तो चेक पेशेंट रिकॉर्ड विल बी इंक्लूडेड। तो ये इंक्लूड यूज केस है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, मेक अपॉइंटमेंट हो गया, और ये शेड्यूलर कैंसिल भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर इज ऑन लीव, कुछ भी। तो मेक अपॉइंटमेंट हो गया, कैंसिल अपॉइंटमेंट हो गया, और कैंसिल अपॉइंटमेंट शेड्यूलर के पास से भी हो सकता है और पेशेंट के पास से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे तो नहीं है कि पेशेंट, और ऐसे बहुत सारी जगहों पे होता है कि लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, सब इंक्वायरी करते हैं और फिर कैंसिल भी करते हैं। तो वो दोनों साइड से हो सकता है, शेड्यूलर के पास से भी हो सकता है और पेशेंट के पास से भी हो सकता है। अब जब मेक अपॉइंटमेंट किया, तो तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो या तुम पहले के पेशेंट हो, तो ऑब्वियसली ये देखो डैश्ड लाइन और एरो, चेक रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं यूज केस इंक्लूडेड। ओके, उसके बाद रिक्वेस्ट मेडिकेशन। ऑब्वियसली मेडिकेशन जो है हम डॉक्टर को पूछेंगे, तो डॉक्टर हमको मेडिकेशन देगा और वो डायरेक्टली पेशेंट के पास जाएगा। ओके, अब उसके बाद तो पेमेंट, हम बाहर आएंगे, रिसेप्शन पे जाएंगे, पे बिल। अब यहाँ पे एक्सटेंशन पॉइंट्स दो हो सकते हैं, मोर ट्रीटमेंट। ओके, तो यहाँ पे मेक पेमेंट में अभी बिल इंश्योरेंस, अभी यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि बिल इंश्योरेंस है क्या, अनलेस उसने बहुत बड़ा बिल दिया है कि, अभी ये जो यहाँ पे बिल इंश्योरेंस है, इट इज अ जनरलाइजेशन। ओके, ये अलग ही यूज केस है। वेयर एज इफ यू सी डिफर पेमेंट, अभी डिफर पेमेंट मीन्स व्हाट, कि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि पहचान का है, पैसे मत लो, या फिर कोई रेफरेंस है डॉक्टर का तो कम लो। ओके, या फिर डिफर पेमेंट लाइक पेमेंट मोड्स हो सकता है, तुम कैसे कैश दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, बहुत सारी चीजें मीन्स मेक पेमेंट इटसेल्फ कैन बी अ सिस्टम। आई अंडरस्टैंडिंग कि क्लिनिक का पेमेंट करो, ये खुद एक सिस्टम हो सकता है। इसलिए डिफर पेमेंट एक्सटेंडेड है, बिल तो पे करना है, फिर कैसे करोगे, ये उसके बाद है ना। तो इट्स एक्चुअली एक्सटेंडेड यूज केस, और उसका नाता जो है वो क्लर्क के साथ है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो एक्सटेंशन पॉइंट यहाँ पे है कि अगर मोर ट्रीटमेंट है, और यहाँ पे बस अगर फर्स्ट इसमें समझ में आएगा कि हाँ डायग्नोज कुछ हुआ है और उसके लिए ऑपरेशन करना जरूरी है, या फिर कोई और टेस्ट करने जरूरी है, और टेस्ट करने के लिए सोनोग्राफी वगैरह ऐसी कुछ चीजें हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे तुमको इंश्योरेंस लगता है। ओके, तो इंश्योरेंस के लिए ये स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट यूज केस है। सो इज दिस डायग्राम माधुरी क्लियर टू यू? और अभी देखो कि इसमें और भी यूज केस बढ़ सकते हैं, ये तो मिनिमम है। अगर तुम्हारे इसमें मेक अपॉइंटमेंट में चेक पेशेंट रिकॉर्ड नहीं है तो वो गलत ही है। ऑब्वियसली ना, हो सकता है तुम नए डॉक्टर को हर रोज नहीं ट्राई करते, तो कहीं पुराने डॉक्टर के पास ही जा सकते हो ना, डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स। तो क्लियरिटी बहुत जरूरी है यहाँ पे, जितना मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो क्लियर है। पर जबकि तुम एक डिजाइन, अभी जब तुम मिनी प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे करोगे, तो मिनी प्रोजेक्ट को तुमको तुम्हारे मिनी प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटीज काफी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसीलिए यूज केस डायग्राम काफी डिटेल्ड हो, क्लास डायग्राम काफी डिटेल्ड हो। क्लास डायग्राम से तुमको तुम्हारे
जो क्लासेस है प्रोग्रामिंग की वो डिजाइन करते आ सकते हैं, और यूज केसेस से तुमको तुम्हारे सारे फंक्शनैलिटीज क्लियर हो जाएंगे. सो माधुरी, इज द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ यूज केस डायग्राम क्लियर टू यू? वेरी वेल. Yes, ma'am. It's clear. Okay. So can I have some input from other students also? Tejasri? Divya? Yeah, Tejasri, tell me. Tejasri? What about Divya? Yash, what about you? So kindly unmute rather than explaining on the chat. Yes, Yash, are you there? Yash? Yes, Divya? Yes, Prathamesh? Yes, ma'am, it is understood. Okay. So can you just describe it, Prathamesh, what you understood? Yes, ma'am. Actually, the use case diagram shows us what actually we are going to build in our system. That is how our actors are present in our systems. Means who are going to play the roles in our system, and which are the roles that also we have to mention by using the use case diagram. And first of all, we have to decide our boundary. Means in this application we have decided as a clinic. If we want to extend it to the hospital, then its use case is again different thing. So first of all, we have to decide the boundary of our system. Yes, that is Then the we have scope. Very correct. So all dear students, kindly note that the next step of your project report is that you will be having the presentation. अगला presentation जो आपका है, जिसके बारे में I have already passed the message to the leaders. Just a moment. So I have already informed the group leaders yesterday in the group that by now 15 days are over, exact 15 days are over. आपका abstract, आपका introduction, अभी class diagram last week we have studied. Today we have drawn the use case diagram. So you will be drawing the use case diagram. Okay. And as I said, कि जो आपका what I am going to do, अभी तक I have not given you the tutorial assignment list. Okay. With respect to UML, whatever you have done for OMD and whatever is given by Narkar madam, you must have done it. So I'm not going to ask about that right now. What I have decided is, Madhuri, you also see that as a CR, use case diagram, जो आपके project का है, that only will be one of your assignment. Are you understanding? तो आपका यूज केस डायग्राम भी मीन्स डबल वर्क. I'm actually integrating your project work and your use case diagrams and the UML diagrams. So how do you find this idea? Ma'am, it's great, ma'am. So that what will happen is you will do it, and by the next 10 days, okay, as we are done with the two diagrams and very fastly we will be doing with the remaining diagrams also, तो वो हो जाएगा. लाइक डायग्राम्स आपके हो जाएंगे, और जो असाइन जो एक स्लाइड आप बनाओगे यूज केस डायग्राम्स की, मैं आपको ये स्लाइड्स एक्चुअली आज दिखाने वाली थी कि आपको ऐसा स्लाइड्स बनाना है. जैसे कि ये देख रहे हो आप, अभी ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का है. दिस इज द सबमिशन. ओके, सो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का है. तो पहले आपको प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना है. आई एम सॉरी, इट्स नॉट शेयरिंग, राइट? शेयरिंग नहीं है ना स्क्रीन? क्या शेयरिंग है? शेयरिंग है ना? ओके. तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दिख रहा है. तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना है. तो ओएमटी जो आपने सेक्शन 1 में पढ़ा है, तो ओएमटी के 3 डायग्राम्स होंगे, क्लास डायग्राम, डायनामिक और फंक्शनल. तो कभी कुछ स्टूडेंट्स ने ये दिख रहा है, ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी? हाँ, या. तो कुछ स्टूडेंट्स ने पेंसिल से ड्रॉ किया है ये ओएमटी, कुछ स्टूडेंट्स यूएमएल से ड्रॉ करेंगे ये. ओके, अब ये यूज केस, अब ये ओएमटी फंक्शनल हो गया. उसके बाद देखो ये पासपोर्ट मैनेजमेंट का क्लास डायग्राम.
ओके, प्रॉपरली ड्रॉ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डायग्राम, यूज केस डायग्राम, अभी ये रफ लेवल का है, इसके बाद स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, इंटरैक्शन डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, ये भी इनकम्प्लीट है। तो ये आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल द टाइप्स, ओके। तो ऐसे ही और रेलवे का दिखाती हूँ, ओके। यूज ऑब्जेक्ट डायग्राम, ओके, यूज केस डायग्राम, उसके बाद इसमें इंक्लूडेड रिलेशंस है, इसमें स्टेट डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, इंटरेक्शन डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है। तो ये जो आपके डायग्राम्स है आपके प्रोजेक्ट का खत्म हो जाएगा मेरे साथ ही ट्यूटोरियल में। सो सार्थक, हाउ डू यू फाइंड दिस आइडिया ऑफ इंटीग्रेटिंग? Yeah, ma'am, it's nice हाँ, idea. और जो स्टूडेंट्स अभी जो स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट ही बी प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिजाइन रिपोर्ट सबमिशन मीन सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन, सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद डिजाइन रिपोर्ट सबमिशन होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और उसमें पूरे यूएमएल डायग्राम्स और यूएमएल डायग्राम्स का डिस्क्रिप्शन ही एक्सपेक्टेड होता है। तो जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर सकते हैं, ओके। सो what I will do also, I have given the message yesterday, so I'll just stop the recording. Yeah,